Hello, my dear students. So let's start with our next topic. Topic number 6.12.3. Collision in two dimensions. ठीक है, चलो. See the figure number 6.10 which is given in your textbook on page number 129. I am drawing the same diagram over here. So there is an object of having mass m1 and it has having the initial velocity u1 which is moving in this direction. We can also assume there is another particle, another object having mass m2 and we can say it is also moving in this direction with a velocity u2, initial velocity u2 which is to be 0 or could be something anywhere. अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपको u2 वेलोसिटी होगी, बट टेक्स्टबुक में जो थ्योरी दे रखी है उसमें दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 अज्यूम की है, बट ये 0 नहीं भी हो सकती है. ठीक है. नाउ इन दिस केस when this object is in steady position, the first object is colliding with this particle. As a result, we can say both the charged particles are moving like this. Let's say this is the particle m1 and this is the particle m2. This particle is having velocity v1 in this direction and this particle is having velocity v2 in this direction. Both the charged particles are making different angles like theta 1 and theta 2 over here. This is the, we can say this one is the x axis and this one is the y axis. This is y and this could be the minus y. So this is the case. We have object m1 having initial velocity u1 and we have object m2, its initial velocity u2 is 0. This m1 is colliding with m2 and as a result both are traveling in the two dimension like this and this. So for the simplicity we are considering that in that case let's apply conservation of momentum. Ready? Let's apply conservation of momentum. So conservation of momentum, whether is your collision is elastic or inelastic, conservation of momentum is always obeys in both the cases. So right now we don't have any idea whether this is elastic or inelastic. कोई भी हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई होगा ही होगा. अब यहाँ पे जो पार्टिकल है हमारा वो ना तो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है ना तो वाई एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है. माई पार्टिकल इज ट्रैवलिंग बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस. ऑब्वियसली सो ये जो पार्टिकल है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, एक वाई कंपोनेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे मोमेंटम भी हमें दोनों मिलेंगे. एक्स एक्सिस का मोमेंटम है उसको अलग से कंजर्व करेंगे, वाई एक्सिस का जो मोमेंटम है उसको अलग से कंजर्व करेंगे. सो लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक्स एक्सिस ओनली. तो यहाँ पे पहला जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में? यस वी कैन सी दिस मोमेंटम इज ऑन द एक्स एक्सिस. हमारा ये जो मोमेंटम है वो एक्स एक्सिस पे है. सो यस वी कैन राइट मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल. अब यहाँ पे सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 ली है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये जो आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल का यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा एक्स एक्सिस पे. कितना बनेगा? m1 v1 cos थीटा 1 और ऊपर बनेगा m1 v1 sin थीटा 1. सेम लाइक दैट ये m2 का भी यहाँ पे एक x कंपोनेंट बनेगा और वही m2 का यहाँ पे
y कंपोनेंट बनेगा। सो यहाँ पे प्लस इन एडिशन हो जाएगा m2v2 cos थीटा 2 और नीचे हो जाएगा m2v2 sin थीटा 2। So on the x-axis, initial momentum is m1u1 and the later momentum is m1v1 cos theta 1 plus m2v2 cos theta 2. Let's say this is the equation number 1. Now let's apply the conservation of momentum for y-axis. So initial momentum तो एक ही है m1u1 and this momentum is purely located on x-axis. This momentum is purely located on x-axis. No component can be traced on the y-axis. Y-axis पे ये momentum है ही नहीं, तो y-axis पे total momentum क्या हो जाएगा 0 is equal to आफ्टर द कोलिजन एक y-axis का momentum ऊपर है एक नीचे है, तो हो जाएगा m1v1 sin थीटा 1 माइनस m2v2 sin थीटा 2। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिखी? क्योंकि एक मोमेंटम ऊपर जा रहा है सो इट इज अ पॉजिटिव, अनदर मोमेंटम इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो इट मस्ट बी नेगेटिव। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन से further if we can say if our collision is elastic, क्योंकि मैंने जैसे बताया ऐसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो ये तो दोनों में ही अप्लाई होगा, पर सिर्फ अगर इलास्टिक है तो इलास्टिक में एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होता है। So if your collision is elastic, you can also apply this conservation of kinetic energy. So always remember my dear students कि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब एनर्जी में कोई भी एक्स या वाई कंपोनेंट नहीं बनेगा क्योंकि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शंस नहीं होती। सो वी कैन से आवर इनिशियल मोमेंटम इज 1/2 m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। सिंपली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो इफ यू आर फेसिंग अ कोलिजन इन 2 डायमेंशन, अगर आप 2 डायमेंशन कोलिजन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप ये 3 फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, है ना। बस ये फॉर्मूलाज में वैल्यूज डाल डाल के आपको ये सॉल्व करना है। अगर आपका कोलिजन इन इलास्टिक है तो सिर्फ इतना ही आएगा, और अगर इलास्टिक है तो ये और ये तीनों के 3 फॉर्मूला आएंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 6.13। Consider the collision depicted in figure 6.10। यही फिगर को हमें कंसीडर करना है। टू बी बिटवीन 2 बिलियर्ड बॉल्स विथ इक्वल मासेस m1 इज इक्वल टू m2। अब हमें यहाँ पे डेटा दिया है कि भी दोनों मास सेम है, m1 एंड m2 आर सेम। लेट्स से बोथ आर सेम विथ हैविंग सम वैल्यू m। The first ball is called the Q while the second ball is called the target। मतलब एक बॉल को हिट करना है दूसरे बॉल पे, अब दूसरा बॉल टारगेट है, ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी 0 होगी। मतलब क्लियर यही केस है हमारा, बस मासेस सबके सेम है। The billiard players wants to sink the target ball in a corner pocket। ठीक है, विच इज एट एन एंगल θ2 इज इक्वल टू 37 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो ये एंगल है ना, ये हमें दिया है 32, कितना दिया है 32 दिया है हमें 37 डिग्री, और θ2 दिया है हमें 37 डिग्री। मतलब यहाँ पे एक होल है और दूसरे बॉल को इसके अंदर डाल देना है। Assume that the collision is elastic and friction and rotational motion are not important,
सो इन दिस केस ऑब्टेन द थीटा 1। रेडी? तो सेम केस है, बस सबके मास सेम है। एम मास वाला ऑब्जेक्ट इससे टकराता है, दोनों ऐसे ट्रैवल करते हैं। ये एंगल दिया है 37, दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है। सो व्हाट कैन वी से? चलो, अब ये जो न्यूमेरिकल है मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूं। सो यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक्चुअली में क्या है कि मैंने आपको ये पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपका एक्स और वाई दोनों सेपरेट करके लिखना है। नो डाउट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये मेथड इजी है, बट हमारा ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है उसमें मैं अलग मेथड से कर रहा हूँ। ये एक्स और वाई को मैं सेपरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स और वाई को मर्ज करके ही एक फाइनल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा देखो, m1, अब मास तो सबके सेम ही है, m1 की जगह भी हम लिख सकते हैं, तो m u1 इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2। ठीक है, यहां पे मैंने x और y कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये m सब में से कट जाएगा, तो u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो आपको ये ऐसा एक फॉर्मूला मिलेगा। फिर यहां पे लिखते हैं कि स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 1 बोथ साइड। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो, अब स्क्वायर है तो u1 डॉट u1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। हियर द थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। ये एक्चुअल में ये जो टर्म है लास्ट वाला टर्म ऐसे होगा 2ab ऐसे होता है, बट a डॉट बी की जगह मैंने डायरेक्ट ab cos थीटा लिख दिया। ठीक है, सो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन अवर v1 एंड v2। ये दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल हो गया हमारा थीटा, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। चलो, तो यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम वेक्टर्स होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल बनता है 0। तो ये हो जाएगा u1 cos 0, cos 0 होगा 1। ये मैं शॉर्ट में यहाँ पे एक लिख देता हूँ u1 cos 0, ऐसा होगा। सेम ये भी क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर है, v1 का स्क्वायर मतलब v1 डॉट v1 इसके जैसे ही हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा v1 cos 0 प्लस v2 cos 0 प्लस 2v1 cos थीटा। cos 0 हो गया 1, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 2v1 cos थीटा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब ये इलास्टिक कोलिजन है तो ऑब्वियसली हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर। तो 1/2 m सब में से कट हो जाएगा, तो क्या बचा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। नाउ ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर क्या हो गया, u1 स्क्वायर।
तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, u1 स्क्वायर। सो अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह हो जाएगा अगेन u1 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा। तो ये u1 स्क्वायर लेफ्ट में चला जाएगा, तो u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर तो 0 इज इक्वल टू 2v1 v2 cos थीटा। सो इट विल गिव यू कि cos थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0/2v1v2, 0/2v1v2 मतलब 0, तो cos थीटा 0। मतलब cos की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तब। मतलब यहां पे मुझे ये मिला कि थीटा है 90 डिग्री। ये थीटा क्या था, ये थीटा था एंगल बिटवीन टू बॉल्स, ठीक है। अब पूरा एंगल 90 है, नीचे वाला एंगल 37 है, तो बाकी का एंगल थीटा 1 क्या होगा, सो वी कैन से थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 37। सो here theta 1 is a 90 minus 37. When you solve it by using the calculator, you will get theta 1 is equal to 53 डिग्री। दूसरा क्या होगा, एंगल हमारा 53 डिग्री। तो यहाँ पे एक रूल बन जाएगा, क्या है रूल, तो न्यूमेरिकल में नीचे लिखा है कि दिस प्रूव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। विच रिजल्ट, व्हेन टू इक्वल masses, when two equal masses undergo a glancing elastic collision, जब दो इक्वल मासेस इलास्टिक कोलिजन करते हैं, उसमें भी विथ वन ऑफ देम इज रेस्ट, मतलब हमारा ही केस, then after the collision they will move perpendicular to each other। जैसे हमने देखा कि भाई दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमने ये जो लिखा उसका मीनिंग क्या है कि दो अगर सेम मास के ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से एक रेस्ट पोजीशन में है और टकराते हैं, तो दोनों टू डायमेंशन में ऐसे जाएंगे कि दोनों के बीच का एंगल कितना बने, 90 डिग्री। मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही ट्रैवल करेंगे ऑलवेज। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू कैन मेमोराइज टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वेरी क्विक एंड वेरी शॉर्ट इन द टाइम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 6 का थियरी पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट कि कोलिजन हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम दिया हुआ है, विच यू कैन सी। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया, मैंने नीट लेवल तक का आपको कोलिजन पढ़ा दिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 1। The sign of work done by a force on a body is important to understand। भाई वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो देखना बहुत जरूरी है। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई हमें कुछ वर्क डन दिए हैं यहाँ पे, और हमें देखना है कि भाई ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। चलो, पहला है वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट out of a well by means of a rope tied to the bucket। मतलब कि किसी एक वेल के अंदर एक बकेट है और वो बकेट पे ऐसे थ्रेड बांधा हुआ है। अ मैन इज पुलिंग दिस बकेट। अब ऑब्वियसली मैन जब पुल करेगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड, रेडी। तो मैन फोर्स अपवर्ड लगा रहा है, तो बकेट है वो कहाँ पे जाएगी, ऑब्वियसली बकेट भी ऊपर ही आएगी। सो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कहाँ हो जाएगा, ऊपर। वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव कब होता है, तो पहले वो हमारा पहला ही लेक्चर, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन
then we can say work done is positive. If force and वाइस वर्सा, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और वर्क डन दोनों, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पहले केस में वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, अब हम देखते हैं केस नंबर 2. वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबव केस. तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है. ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? डाउनवर्ड. और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर है. तो ये केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये केस में हमारा वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव. केस नंबर सी. वर्क डन बाय फ्रिक्शन on a body sliding down an inclined plane. This is the kind of inclined plane and a body is sliding down. ठीक है, तो ये केस में हमें वर्क डन फाइंड करना है, पर किसका? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. ये केस में वर्क डन किसका फाइंड करना है? हमें फ्रिक्शन का. सो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? So my dear students, friction is always acts opposite to the motion. तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, ये स्मॉल f डिनोट्स द फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे. सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क डन इज अ नेगेटिव. रेडी? नाउ केस नंबर सी, सॉरी सी तो कर दिया है ना. डी. वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये हमारा रफ प्लेन है. अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर हियर एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ऑब्वियसली हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा. रेडी? चलो, नाउ इन दिस केस हमें वर्क डन किसका फाइंड करना है? अप्लाइड फोर्स का. तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. नाउ द लास्ट केस, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट. तो पहले ये समझो कि भाई रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर क्या होता है. रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर मतलब ऐसा फोर्स जो दिस फोर्स एक्ट्स ऑलवेज अगेंस्ट द मोशन, है ना. मोशन के ऑलवेज अगेंस्ट में ही लगेगा ये फोर्स. जैसे कि मान लो कि ये पेंडुलम है हमारा, पेंडुलम जो ऐसे ट्रैवल कर रहा है. अगर पेंडुलम ऐसे जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हुआ, तो रेजिस्टिव फोर्स कहाँ पे हो जाएगा? ऑपोजिट. एफ आर मीन्स रेजिस्टिव फोर्स. सो हर बार रेजिस्टिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये केस में आपका वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है, दिस वॉज द केस नंबर ई, योर लास्ट केस. तो यहाँ पे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6.1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.2. अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, तो हमें m दिया हुआ है 2 किलोग्राम. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? 0. मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन द टेबल. मतलब हम ये ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू 7 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है,
ऑन अ टेबल विथ अ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई यहाँ पे हमें म्यू के की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.1। अब म्यू के है मतलब ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शन वाली है। कंप्यूट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। ठीक है, चलो तो पहले ये देखो भाई वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब अप्लाइड फोर्स यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली यहाँ पे होगा तो एंगल बनेगा 0, कॉस 0 होता है 1, तो W इज इक्वल टू एफ डी। तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स की वैल्यू तो है 7, पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे भाई टोटल फोर्स कितना लगता है। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक वर्चुअल फोर्स होगा ma और फ्रिक्शन फोर्स होगा Fk। तो अब फोर्स क्या बनेगा कि F इज इक्वल टू ma प्लस Fk। तो F इज इक्वल टू ma प्लस Fk proportional to n and Fk is equal to mu k n and we can say कि भाई n is equal to क्या होता है mg। तो n की जगह पे mg रख दो तो F is equal to ma प्लस mu k mg। तो आपके पास F की वैल्यू है 7, m की वैल्यू है 2, एक्सेलरेशन आप फाइंड करो, mu k की वैल्यू दे रखी है 0.1, m अगेंस्ट 2 है और g की वैल्यू रखो 9.8। ये सब करने के बाद आपको a सॉल्व करना है तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट फाइनली इतने एक्सेलरेशन से ट्रैवल करेगा, बट हमें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। तो 10 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए d इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये वाला टर्म u 0 डाल दो तो पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 a की जगह डाल दो 2.52 एंड टाइम t, टाइम कितना है हमारे 10 सेकंड के लिए हमें फाइंड करना है तो 10 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 126 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 126 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, f हो गया हमारा 7 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 126, तो वर्क डन हो गया 882 जूल। चलो इसमें b क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है आगे। हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है आगे, तो ऑब्वियसली कि डिस्प्लेसमेंट आगे है और फोर्स पीछे है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वर्क डन कैसा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सो W इज इक्वल टू एफ के। अब एफ के की वैल्यू क्या है, तो एफ के की वैल्यू यहां से हमको मिलेगी, ये हमारा पूरा एफ के है। अब एफ के की वैल्यू आपको मिलेगी, ये जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.96, तो माइनस 1.96 इंटू डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 126 था ही, तो ये वर्क डन हमें मिला माइनस 247 जूल, इतना वर्क डन मिला। चलो अब हम देखते हैं इसमें सी, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड। तो टोटल वर्क डन कितना हो रहा है ये प्रोसेस में, तो देखो एक वर्क डन है जो पॉजिटिव हो रहा है, एक वर्क डन है नेगेटिव हो रहा है, तो टोटल कितना वर्क हो गया। सो नेट वर्क इज इक्वल टू 882 माइनस 247, दिस विल गिव यू 635 जूल। टोटल वर्क इतना हुआ, इतना वर्क पॉजिटिव हो रहा है, इतना वर्क नेगेटिव हो रहा है, तो नेट हमारा इतना वर्क ज्यादा हो रहा है। चलो डी,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकेंड। ये पूरी प्रोसेस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, तो फॉर्मूला W इज इक्वल टू डेल्टा K। ठीक है, तो जितना टोटल वर्क डन हुआ उतना ही हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया 635। टोटल वर्क डन 635 है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना आ गया 635 जूल। दिस इज अवर आंसर। So I hope you all are able to understand the numerical. Then also if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.